Good morning, dear students. Today we are going to discuss the last and final remaining part of our history lesson number 5, Pastoralist in the Modern World. Dear students, before this video, we have studied about pastoralism in Africa. Now we are going to discuss about that part also. In the 19th century, you know that African pastoralist people could not move over the vast areas in search of pastures. You know that pasture land was converted into fields, yeah, it was converted into national parks. When the one pasture was exhausted, before the coming of Europeans, the pastoralists used to move from another area. But after the coming of the Europeans and in the late 19th century, the European governments in different parts of the African continent had started to impose various restrictions on the movement or on the mobility of pastoralist people, like the Maasai community. There were many other pastoralist communities were in African continent, which were also forced to live in the particular area. The boundaries of these reserves became the limit within which they could move. They were not allowed to move out with their animals or with their animal stock without special permits, and it was quite difficult to get permits without trouble, without bribe or riswat, or without harassment. And those who were found guilty, if a pastoralist person and was out of that particular region with his cattle, then he was very badly punished. So they were facing a lot of problems. Pastoralists were also not allowed to enter the market in white areas. The areas in which white people used to live, where the pastoralist people were denied to entry. They were not allowed to do any kind of trading activity. White settlers and European colonists, it means European person who had settled in African continent, they saw the pastoralists as the dangerous person, as the savage or uncivilized people, and they wanted to have minimum contact with them. So cutting off all links, सभी प्रकार के संपर्क कटने के कारण दे नेवर रियली पॉसिबल, ये तो रियली पॉसिबल नहीं था कि 100% आप वहाँ से उनके रिलेशंस काटेंगे, बट कुछ वो थोड़े बहुत निर्भर भी थे, बिकॉज वाइट पीपल वर रिक्वायरिंग द लेबरर्स फॉर माइनिंग, बिल्डिंग द रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टाउन्स और हाउसेज. The new territorial boundaries or geographical boundaries and restrictions imposed on them suddenly changed the life of pastoralists. This very badly or adversely affected both their pastoral and trading activities. Earlier pastoralists not only looked after animal, पहले ये केवल अपने एनिमल्स की केयरिंग नहीं करते थे, बट वेरियस स्मॉल लेवल की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी करते थे. बट अंडर द रेस्ट्रिक्शंस विच वर इम्पोज्ड बाय द यूरोपियंस, दे वर denied to do the trading activity because there were a lot of barriers, a lot of restrictions on them. Due to shortage of pasture lands, they were facing other problems. Due to drought, the pastoralists were very badly affected. When rains fail, जब कभी बारिश नहीं होती, pastures dry up हो जाते, कैटल्स को बहुत भूखा मरना पड़ता, या उनको उस जगह पे जाना पड़ता जहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रासीज अवेलेबल हो जाए. ट्रेडिशनली पेस्टोलिस्ट नोमैडिक थी, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती थी. इस प्रकार कोई बुरा टाइम आए, जैसे रेनफॉल ना होना और प्रॉब्लम होना, तो अपने एनिमल्स को कहीं भी ग्रेज करा के बैड टाइम को मैनेज कर लेते थे. बट आफ्टर द कमिंग ऑफ यूरोपियंस, द मसाई वर बाउंडेड टू लिव इन ए फिक्सड एरिया. उनका एरिया फिक्स कर दिया गया, वो मूव नहीं कर सकते थे. उनके बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड से उनको कट ऑफ कर दिया गया, उनको सेमी एरिड रीजन्स में कन्फाइंड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली ड्रोट्स आते थे, वहाँ पे फ्रीक्वेंटली सूखा होता था, रेनफॉल शॉर्टेज होती थी. सिर्फ दे कुड नॉट, और वो अपने एनिमल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते थे, चाहे अदर प्लेस के ऊपर क्यों न अदर ग्रासीज अवेलेबल हो. इस प्रकार स्टारवेशन के कारण, ड्यू टू ड्रोट, जब भूख थी, एनिमल्स को भरपेट चारा नहीं मिल रहा था, तो स्टारवेशन और डिजीज प्रॉब्लम बढ़ गई, रेसिस्टेंस पावर कम होने के कारण. तो 1930 में
जो केनिया में मसाई कम्युनिटी के पास जितने भी एनिमल्स होते थे वो नेक्स्ट ईयर्स में ड्यू टू ड्रोट हैड डिक्रीज्ड अप टू हाफ एज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स वाज डिक्रीजिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रोट हैज इंक्रीज्ड। आइए हम देखते हैं आगे क्या हुआ। नॉट ऑल वर इक्वली इफेक्टेड, इन ड्रोट से सभी लोग इक्वली इफेक्टेड नहीं हुए। सर कैसे? इन मसाई लैंड इन अफ्रीका not all pastoralists were equally affected by the changes due to the Europeans. In pre-colonial time means before the coming of Europeans, Maasai society was divided into two categories. Maasai society में दो categories थी. One was the elders means बुजुर्ग लोग, warriors means योद्धा युवा लोग. एल्डर्स लोग रूलिंग ग्रुप था. इट मीन्स अपनी कास्ट को रूलिंग करते थे, मैनेज करते थे. टाइम टू टाइम उनकी काउंसिल्स मीन्स मीटिंग्स होती थी कम्युनिटी के डिसीजंस को, मैटर्स को मैनेज करने के लिए, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए. वाइल जो वेरियर्स यंग लोग थे उनका काम अपनी कम्युनिटी को दूसरी पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी से अटैक से बचाना. अपनी कम्युनिटी के लिए कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज करना. क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी जहाँ पे कैटल रियरिंग का वर्क है वहाँ पे कैटल ही सब कुछ था. सो कोई भी योद्धा या वेरियर जितनी कैटल रेडिंग में भाग लेता था उतना ही ज़्यादा उसको पावरफुल माना जाता था, उतना ही बढ़िया उसको माना जाता था. बट एल्डर्स हैड टू वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ द वेरियर्स हैड टू वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स टू एडमिनिस्टर द मसाई कम्युनिटी के मैटर्स को देखने के लिए ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स इम्पोज किए, लागू किए. उन्होंने मसाई कम्युनिटी में जो डिफरेंट ग्रुप थे उन्होंने उनके चीफ अपॉइंट करने शुरू कर दिए और उनको रेस्पॉन्सिबल किया गया कि यू वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर्स ऑफ योर कम्युनिटी. द ब्रिटिश इम्पोज्ड वेरियस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कैटल रेडिंग और युद्ध वगैरह भी. एज ए रिजल्ट जो वहाँ पे अथॉरिटी थी बोथ द एल्डर्स और बोथ द वेरियर्स वो नेगेटिवली इफेक्ट हुए. द चीफ अपॉइंटेड बाय द लोकल कॉलोनियल गवर्नमेंट और बाय द यूरोपियन गवर्नमेंट समय के साथ उसने वेल्थ एक्वायर किया डिफरेंट वेज से. उसकी रेगुलर इनकम होती थी, उससे वो क्या था अपने एनिमल्स बाई कर ले, गुड्स परचेज कर ले और रहने की ज़मीन या खेत के लिए ज़मीन. जब उनके पास पैसा हुआ तो दे स्टार्टेड टू पे द मनी ऑन इंटरेस्ट टू द पुअर पर्सन्स फॉर पेइंग द टैक्स. कुछ ने गाँव में की बजाय शहरों में रहने शुरू किया, ट्रेड स्टार्ट कर दिया. यद्यपि बट दियर वाइफ या दियर चिल्ड्रन यूज टू स्टे इन द विलेज एंड लुक आफ्टर द एनिमल्स. समय के साथ जब ड्रोट्स होते थे, वार वगैरह होते थे तो ये चीफ जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक थी डिफरेंट सब ग्रुप्स में ये मैनेज कर लेते थे बिकॉज दे हैड द पेस्टोरल एंड नॉन पेस्टोरल इनकम. आइए बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पेस्टोलिस्ट, जो लोग केवल पेस्टोलिज्म पे डिपेंड थे वो बहुत बुरी तरह प्रभावित थे. मोस्ट ऑफन बहुत समय जब बैड टाइम्स होता था, ड्रोट्स वगैरह हो गई तो उनके पास अपने को मैनेज करने के कोई अदर वेज नहीं थे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार और फेमिन या अकाल के समय सब कुछ बर्बाद हो जाता था. उनको टाउन्स में काम तलाश करने के लिए जाना पड़ा, चाहे वो सड़क बनाने के लिए चारकोल बर्निंग हो या डिफरेंट टाइप ऑफ ओड जॉब्स हो. लक्की वन वही लोग होते थे जो बेटा वर्क रेगुलरली ले लेते थे रोड कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में. थस ड्यू टू द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस मसाई कम्युनिटी के बड़े चेंजेस हुए. फर्स्ट उनका जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ एज लाइक द एल्डर्स एंड वेरियर्स वो प्रभावित हुआ. सेकंड एक नया डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गया वेल्दी और पुअर पेस्टोलिस्ट का. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर coming on the conclusion of this particular chapter. You have studied that pastoralist communities in different parts of the world are affected in variety of ways by changes in the modern world. New laws and the borders which were decided had put a lot of strain on their movement. With increasing restriction on their mobility or on their movement, pastoralist people found it difficult to move in search of pasture. एज पास्चर लैंड डिसअपियर, जैसे जैसे पास्चर लैंड उनके लिए डिसअपियर हुई, ग्रेजिंग प्रॉब्लम बढ़ गई और उनके जो एनिमल्स की कंडीशन थी वह जो एनिमल्स की हेल्थ थी या उनके नंबर घटना या डेथ्स थी वो बढ़ते गए. येट पेस्टोरिस्ट डिड नॉट अडेप्ट न्यू टाइम्स.
डू अडेप्ट, समय के साथ पेस्टोरिस्ट ने भी नए समय के साथ अपने का अडेप्ट किया, उन्होंने भी डिफरेंट मोमेंट्स वगैरह को अडेप्ट किया. ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. वी वुड आल्सो शेयर इट्स असाइनमेंट. ओके.